we had completed till mitosis. So in this class, we are basically beginning from the meiosis. If you remember, when we did mitosis, I said mitosis is actually an equational division. ठीक है, equational division मतलब कि जो भी daughter cells form होंगे, the daughter cells will be having same number of chromosomes as that are present in their parent cell. Suppose parent cell में suppose there are 4 chromosomes if they are present in total, तो daughter cell में कितने होंगे? Daughter cell में भी there will be 4 chromosomes. So this was actually mitosis. Since there are equal number of chromosomes in both the parent cell and the daughter cell, we call this mitosis as the equational division. Okay? Now, what is its difference from meiosis? Meiosis, how do we define meiosis? Meiosis is actually a double division. Double division क्यों होता है? Because the meiosis is divided into two phases. ठीक है, meiosis जो process है, it actually takes place in two phases, namely meiosis 1 and meiosis 2. So it is a double division occurring in a diploid cell. ठीक है, it has to occur in a diploid cell, which gives rise to the four haploid cells. Four haploid cells. So here it will be four haploid cells, each having half the number of chromosomes as compared to the parent cell. ठीक है, तो अगर suppose parent cell में if there are 4 chromosomes, so the daughter cell will be having 2 chromosomes, because this is in meiosis division, we are saying the number of chromosomes they actually get reduced to half as compared to that of the parent cell. ठीक है, so this is actually meiosis, and so do not get confused. कई बहुत बार direct question आता है, the basic difference between mitosis and meiosis, so you can explain it by giving the definition. ठीक है, and since the number of chromosomes are actually getting reduced to half, this meiosis is also known as reductional division. Reductional division क्यों? Because जो number of chromosomes हैं parent cell से वो reduce हो रहे हैं in the daughter cell. ठीक है, mitosis में there was no change in the number of chromosomes. जितने parent cell में थे उतने ही daughter cell में number of chromosomes were there. ठीक है, इसीलिए the mitosis was known as the equational division, whereas the meiosis is known as the reductional division. ठीक है, so this is the definition of basic concept of meiosis. What happens in meiosis? So we will study meiosis in two parts, which is actually meiosis 1 and meiosis 2. उससे पहले firstly we'll quickly go through the types of the meiosis. Types of meiosis क्या क्या है? First is the gametic meiosis, zygotic meiosis, and sporic meiosis. So, what are the basic differences between these three types of meiosis? First is gametic meiosis. Gametic से you can understand the meaning. It is connected with the gametes. ठीक है? Gametes क्या होते हैं? The sperm and the egg. So ये गैमीटिक meiosis पहले तो कहाँ पे होगा? जिन भी organisms में the sperms and eggs they are forming. ठीक है, so this gametic meiosis it actually takes place in the higher organisms which produce the testes and the ova as the gametes. ठीक है, these are the gametic organs. So the testes and ova, इसमें क्या होता है? जिन organisms में testes and ova present होते हैं, so they undergo meiosis to produce the haploid gamete. ठीक है, zygotic meiosis में क्या होगा? The zygote is undergoing the meiosis, and zygotic meiosis में क्या होगा? जो lower organisms होते हैं like the algae, the bryophytes, उन सब में क्या होते हैं कि these well defined gametes are not there, like testes and ovary they are not present. So in the algae, or algae क्या करते हैं? Red algae, brown and green algae, what do they do? They जो उनके cells होते हैं they actually fuse together. So when the gametic cells fuse, they form a structure which is actually zygote. And this zygote is diploid in nature. Everybody knows that zygote is actually diploid in nature. फिर क्या होता है? This zygote is actually responsible for undergoing meiosis to form the haploid gametes. ठीक है, तो इसमें meiosis कौन से सेल में हो रहा है? The meiosis is actually taking place in the zygote. So that is why we call this type of meiosis as the zygotic meiosis. Okay. The third type is the sporic meiosis. Sporic means the spores. It is related to the spores. So if you remember, when we did the plant kingdom, the spores, well-developed spores, they were actually present in the pteridophytes. ठीक है, they were the first vascular plants. So pteridophytes में क्या हुआ था?
they basically help in the formation of haploid spores. Pteridophytes में क्या था? The main dominant generation was the sporophytic generation, and जो gametophytic generation थी, that was a very short-lived stage. ठीक है? So basically sporic meiosis में क्या हो रहा है कि जो sporophyte है, that is the main reproducing organ, main dominant stage, and that is responsible for producing the haploid spores, and that is why this meiosis is known as the sporic meiosis. Because इसमें क्या होता है, जो spore mother cells हैं, the spore mother cells are basically undergoing meiosis to produce the haploid spores, and hence this meiosis is known as the sporic meiosis. Okay. Now these were the three basic types of the meiosis. Now we study the process of meiosis. Okay. Meiosis, so again, just now, like I said, it is a double division. So meiosis is divided into two categories: meiosis one and the meiosis two. ठीक है? Meiosis one में again same चीज होगी mitosis के तरह. There will be a karyokinesis stage and then there will be a cytokinesis stage. ठीक है? So to not create any confusion, we have written it as karyokinesis one, cytokinesis one, and the karyokinesis two and the cytokinesis two. ठीक है? So karyokinesis one में the phases they basically remain the same: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Meiosis one में एक separate चीज, एक additional चीज क्या आ जाती है? जो prophase one होता है meiosis one का, it is further subdivided into many stages. कौन सा stage divide हो रहा है? Prophase one of meiosis one. ठीक है? So the prophase one actually gets divided into further sub stages, which are namely leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, and diakinesis. ठीक है? So you have to remember these sub stages exactly in this order. ठीक है? You cannot just intermingle them. Exactly इसी order में ही stages को learn करना है. First has to be leptotene, then zygotene, then pachytene, then diplotene, and then the diakinesis. ठीक है? And then the regular stages, which are the metaphase one, anaphase one, telophase one, and then there will be the cytokinesis one. ठीक है? Meiosis two में क्या होगा? Meiosis two में there will be again the karyokinesis two. Firstly, the karyokinesis phase has to be there. So वो किस में divide हो रहा है? Prophase two, metaphase two, anaphase two, and the telophase two, and then the cytokinesis. इनमें basic चीज क्या है कि obviously जैसे mitosis में हमने क्या किया था? Before entering into the prophase stage, cell कौन से stage में present था? Cell was actually present in the interphase stage. ठीक है? मतलब जो G2 phase से the cell actually entered into the prophase. तो यहाँ पे भी exactly same चीज होगी. Meiosis में क्या होगा? The cell firstly would be present in the interphase. Interphase में again G1 phase, S phase, G2 phase, ये सभी phases present होंगे, and when the interphase gets completed, then only the cell will actually enter the meiosis. So this thing basically remains the same. अगर हम majorly if we talk about the difference between meiosis one and meiosis two, तो इसमें क्या होता है? meiosis one को basically जो हम meiosis को बोलते हैं reductional division, तो जो reductional division के लिए responsible होता है, that is actually this meiosis one. ठीक है? We'll see it in a while. तो meiosis one में क्या होता है कि जो दो cells बनते हैं at the end of meiosis one, they have half the number of chromosomes as the parent cell. और जो meiosis two होता है, it is exactly like similar to the mitosis. Mitosis में जो जो steps होते हैं, exactly same steps they will be taking place in meiosis two. ठीक है? So इसके end पे दो cells बनेंगे and इसके end पे, so at the end of meiosis, complete meiosis, total 4 cells will be formed. ठीक है? So इसके बाद हम, so this was the introduction of meiosis. Now we move on to the first stage of meiosis one, which is actually the prophase one. So you can take a photo of this and then we can start with the meiosis one, and the first stage will be the prophase one. Everyone done? Okay.
बिफोर स्टार्टिंग द meiosis वन, एक इसमें एक टर्म आती है विच इज इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज. ठीक है. इंटरकाइनेसिस क्या होता है? इट इज द मेटाबॉलिक स्टेज बिटवीन द टीलोफेज ऑफ द meiosis वन एंड द प्रोफेज ऑफ द meiosis टू, which means the time duration between when the meiosis 1 gets completed and the meiosis 2 is about to begin. बात समझ में आ रही है? द टाइम ड्यूरेशन व्हेन द meiosis 1 एक्चुअली गेट्स कंप्लीटेड एंड meiosis 2 इज अबाउट टू बिगिन. तो जो बीच का वो ड्यूरेशन होता है, वी कॉल दैट एज इंटरकाइनेसिस, and it has nothing to do with the interphase. So do not get confused between the interkinesis and the interphase. These two are completely different terms. ठीक है. And again, obviously like इसमें कोई interphase नहीं है तो इसमें कोई S phase नहीं होगा एंड ना ही कोई डीएनए सिंथेसिस होगा. ठीक है. सो अगर हम सिंपल प्रोसेस की बात करें बिफोर स्टार्टिंग विद द meiosis, सपोज दिस इज अ डिप्लॉयड सेल एंड लेट अस कॉल इट एज अ meiocyte. Meiocyte मतलब it is the cell which has to actually undergo the meiosis. ठीक है. So at the end of meiosis 1, at the end of meiosis 1, what is going to happen? We are going to get two cells, and these two cells will be having half the number of chromosomes as the parent cell. So this is a diploid cell. What will we be getting? This will be haploid and this will be haploid because the chromosome number it actually reduces to half. ठीक है. So अच्छा, अब meiosis 2 में क्या होगा? Meiosis 2 में, like I said, it is similar to the mitosis. So each cell will produce a cell. ठीक है. मतलब each cell will give rise to two cells जैसे mitosis में होता है. So again, इनका ploidy will remain same. They will remain haploid, but this will be the meiosis 2. So this is a quick flow chart of what is actually happening during the meiosis. This is a meiocyte, the cell which has to undergo meiosis. So during the meiosis 1, the chromosome number reduces to half, and meiosis 2 may the chromosome number actually remains the same, and at the end of meiosis we get the 4 haploid cells. So this will be the reductional division and this will be the equational division. ठीक है. So now we'll start with the meiosis 1. उससे पहले we'll draw the interphase. Interphase में सेल कैसा दिखेगा? हाँ बोलो. बच्चे इक्वेशनल डिवीजन ही तो है. यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलरेडी है, तो यहाँ पे n है. ये तो इसके लिए तो ये पेरेंट सेल है ना, इन दोनों के लिए तो ये पेरेंट सेल है. तो इसका तो कितना है क्रोमोसोम नंबर? इट इज n. प्लॉइडी लेवल n है, तो इनका भी तो n ही है. इक्वेशनल डिवीजन ही तो. अभी जब आप देखोगे meiosis 2 के जो स्टेप्स हैं या meiosis 2 के जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीटली रिजेंबल करते हैं माइटोसिस से. एक्चुअली ओवरऑल हम meiosis को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम इस meiosis 1 एंड meiosis 2 को एक कलेक्टिव प्रोसेस कंसिडर करते हैं. ठीक है. क्योंकि अगर हम एट द एंड ऑफ meiosis 2 इफ यू गिव अ लुक, तो ये पेरेंट सेल है एंड एट द एंड ऑफ meiosis 2 व्हाट डू वी गेट? वी गेट द 4 हैप्लॉइड सेल्स. ठीक है. तो मतलब एक पेरेंट सेल से विच इज अ डिप्लॉइड सेल, व्हाट डू वी गेट? वी गेट 4 हैप्लॉइड सेल्स. सो इसीलिए ओवरऑल वी कॉल इट एज द रिडक्शनल डिवीजन. बट अगर हम इन दोनों को फर्दर डिवाइड करते हैं तो meiosis 2 को हम एक्चुअली आप इक्वेशनल डिवीजन नहीं बोल सकते. इट्स जस्ट लाइक कि ये जो रिजेंबल करता है, इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ माइटोसिस. एंड माइटोसिस इसके जब आप देखोगे व्हेन वी स्टार्ट विद द meiosis 2, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे विद दैट ऑफ माइटोसिस. ठीक है. इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला. ठीक है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इंटरफेज. इंटरफेज में सेल कैसा दिखेगा? Obviously the nuclear membrane has to remain intact, and और क्या होगा कि जो centriole duplication होगा वो complete हो जाएगा. So centriole, there will be 2 centrioles. ठीक है. तो ये दोनों centrioles they haven't moved to the poles, so they are present together. ठीक है. So I've drawn these 2 centrioles. और क्या क्या होगा? अगेन हम बेसिक जो माइटोसिस में स्टार्ट किया था, वी आर स्टार्टिंग विद द डिप्लॉयड इंडिविजुअल विच हैज टोटल 4 नंबर ऑफ 4 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है. सो वी आर स्टार्टिंग विद एन इंडिविजुअल विच हैज 4 क्रोमोसोम्स. ठीक है. सो वील ड्रॉ द क्रोमोसोम
क्रोमैटिन फाइबर्स, बिकॉज अभी हम उनको क्रोमोसोम्स नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली कंडेंस्ड, ठीक है. So this is how a cell is going to look like at the end of the G2 phase. And what are these? What do we call these? These are actually the chromatin fibers, ठीक है. And what are these? These are the centriole pair, ठीक है. आई एम अज्यूमिंग ये समझ में आ रहा है बिकॉज इंटरफेस में कोई डिफरेंस नहीं है. इट इज एग्जैक्टली द सेम जो माइटोसिस वाले इंटरफेस में हो रहा था. सो नाउ वी बिगिन विद द प्रोफेज 1. सो दिस इज द प्रोफेज 1, ठीक है. प्रोफेज 1 में जैसे मैंने बोला कि देयर आर फर्दर 5 सब स्टेजेस. तो जो सबसे पहली फर्स्ट स्टेज आती है दैट इज एक्चुअली व्हाट इज इट, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट लेप्टोटीन, ठीक है. बोलो बोलो. मियोसिस में क्यों अपीयर होते हैं, माइटोसिस में भी तो होते हैं. किस में दिखते हैं? अरे तो एवरी सेल वुड बी डिवाइडिंग ना. तो जब सेल डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली आप उसको तभी देखोगे ना. एंड अगर सपोज इफ यू जस्ट रैंडमली पिक अप अ सेल एंड उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करते हो तो तभी भी तो वो सेल किसी ना किसी स्टेज पे प्रेजेंट होगा, या वो किसी स्टेज पे नहीं होगा. कभी भी किसी भी रैंडम सेल को भी अगर पिक करके आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो वो पर्टिकुलर सेल किसी ना किसी स्टेज पे तो होगा. इट कैन बी एट द माइटोसिस अगर वो सोमैटिक सेल है तो, एंड अगर गैमेटिक सेल्स है तो दे वुड बी अंडरगोइंग मियोसिस. सिंपल. तो इसमें वो क्वेश्चन क्या है कि मतलब सिर्फ माइटोसिस या मियोसिस में क्यों देख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सेल्स तो डिवाइड ही करेंगे ना. दैट इज द कंप्लीट चैप्टर अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. कोई भी सेल के क्रोमोसोम्स को उठाओगे, क्रोमोसोम्स में तो ये सब कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है. एंड वो सब तो क्रोमोसोम्स तो जो है, जो सेल्स जो है वो तो डिवाइड करते रहेंगे. सेल बेसिकली तो एंड में डिवाइड करता है एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस. तो बेसिकली ये सब जो हो रहा है ये सब तो कहाँ हो रहा है, ये सब तो न्यूक्लियस में हो रहा है ना. एनीथिंग एल्स? ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द लेप्टोटीन स्टेज. लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, देखो अब इस वाली स्टेज, ये प्रोफेज की स्टेजेस हैं, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो लास्ट तक जाके एक्चुअली डिसॉल्व होगा, ठीक है. तो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली इंटैक्ट है, ठीक है. एंड वी हैव एक्चुअली टेकन 4 क्रोमोसोम, ठीक है. सो सपोज these are the chromatin fibers, and to differentiate it let's draw it with a black, ठीक है. अभी बाद में पता चलेगा why are we drawing it like this. देखो अच्छा, इसमें जो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर्स होती है उनकी कंडीशंस क्या होती है, दे एक्चुअली गिव अ beaded appearance. So these are actually the beads. अब होता क्या सबसे पहले, अगेन जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल दे विल रिमेन एज इट इज. अभी वो मूव करना स्टार्ट नहीं किए हैं सेंट्रियोल्स. सो दे आर प्रेजेंट एज इट इज. जहां पे थे वो अभी वहीं पे ही प्रेजेंट है, ठीक है. अब और क्या होगा इसमें एक्चुअल में होता क्या, देखो प्रोफेज, यू नो कि जब भी प्रोफेज स्टार्ट होता है तो जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं दे एक्चुअली स्टार्ट कंडेंसिंग. सो लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो लेप्टोटीन स्टेज है अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दीज आर स्टिल द क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, बिकॉज कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. तो इनमें क्या होता है, जब ये क्रोमैटिन फाइबर्स व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट द कंडेंसेशन, तो ये जो कंडेंसेशन होती है वो एकदम से नहीं हो जाती है. मतलब इट एक्चुअली अकर्स एट इंटरवल्स. मतलब जैसे अभी कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो थोड़े टाइम बाद इट विल स्टॉप, एंड देन अगेन थोड़े टाइम बाद इट विल स्टार्ट, एंड देन इट विल स्टॉप. सो द कंडेंसेशन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट इंटरवल्स, ठीक है. सो जो कंडेंसेशन है एज इट इज टेकिंग प्लेस एट इंटरवल्स, तो क्या होता है कि जो जब इन क्रोमोसोम्स को या इस पर्टिकुलर स्टेज को व्हेन वी ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, इट एक्चुअली गिव्स अ बीडेड अपीयरेंस, ठीक है. बीडेड अपीयरेंस क्यों, बिकॉज जो ये रीजन्स हैं, जो स्वोलन रीजन्स हैं, दीज आर एक्चुअली द कंडेंस्ड
एरियाज, ठीक है, एंड जो बाकी के एरियाज है दे आर स्टिल टू बी कंडेंस्ड, ठीक है, इसीलिए वी गेट दिस बीडेड अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या होगी इसमें, जो सेंट्रियोल्स है वो तो एज इट इज रहेंगे, अभी दे हैवंट स्टार्टेड मूविंग। एंड एक और चीज स्टेज के बारे में बोलते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल दिस लेप्टोटीन स्टेज एज द बुके स्टेज, इसको हम बुके स्टेज भी बोलते हैं। बुके स्टेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं they actually remain attached or to the one end of the nuclear membrane, जो nuclear membrane है उसके एक एंड पे these chromatin fibers they actually remain attached, ठीक है, so they give the appearance of a bouquet and hence this leptotene stage is also known as the bouquet stage. अच्छा, इनको ये जो beaded structures हैं they have been given a name and they are actually known as chromomeres, they are known as chromomeres, ठीक है। Now I'll write down the characteristics. First क्या है, the chromosomes they are present as thin threads of chromatin fibers, thin threads of chromatin fibers, ठीक है। और क्या होगा, सी हर स्टेज में मैं ये मेंशन नहीं कर रही हूँ कि ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सो दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, एंड वो सेंट्रियोल्स है उसको खुद लेबल कर लेना। अच्छा, और क्या होगा यहाँ पे, सेकंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, व्हाट डिड आई से कि द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स इट एक्चुअली अकर्स एट इंटरवल्स, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन fibers it occurs at intervals, ठीक है, बात समझ में आ रही है। why do we call it as a beaded stage, beaded stage इसीलिए बोलते हैं because जो chromatin fibers है they are undergoing condensation at intervals, ठीक है, so because of that it gives actually a beaded appearance, ठीक है। so the chromatin fibers they possess a string of swollen areas, chromatin fibers possess swollen areas, ठीक है, which are known as chromomeres, ठीक है। so these beads they are actually known as chromomeres, ठीक है, and appear beaded। fourth fifth point क्या है, this leptotene stage is also known as the bouquet stage। Why do we call it as the bouquet stage, because the chromatin fibers they attach to the nuclear membrane at one end, so the chromatin fibers attached to the nuclear membrane at one end। एक्चुअल में होता क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एक ही एंड से न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होंगे, देर आर चांसेस कि वो दूसरे एंड से भी अटैच्ड हो, बट मेजरली वो एक ही एंड से अटैच होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस लेप्टोटीन स्टेज इज ऑल्सो नोन एज द बुके स्टेज। क्लियर? Note this down and we start with the next stage which is the zygotine stage। लेप्टोटीन समझ में आया एवरीवन? कैन आई रब इट? किसके? अरे तो क्योंकि दो मियोसिस हो रहे हैं ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो स्टेजेस तो सेम ही रहने वाली हैं, बट सिर्फ मियोसिस 1 में प्रोफेज की 5 सब स्टेजेस है, मियोसिस 2 में कुछ नहीं है। मियोसिस 2 बहुत सिंपल है, जब वो स्टार्ट होएगा तो वो पता लगेगा कि ये तो एग्जैक्टली सेम है, बस ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है ना वो दैट इज एक्चुअली मियोसिस 1। एंड अगर उसमें डिफरेंस समझ में आ जाता है तो बाद में देयर इज एक्चुअली नो प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट स्टेज इज एक्चुअली लेप्टोटीन के बाद विच इज द नेक्स्ट स्टेज,
बोलो, दैट इज जाइगोटीन। ठीक है, अब देखो जाइगोटीन में क्या होगा। अगेन पहले मैं पॉइंट बताती हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट विल स्टिल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल इंटैक्ट। अब इसमें क्या एक नई चीज हो जाएगी, पहले तो जो सेंट्रियोल्स है वो धीरे धीरे अब मतलब जाइगोटीन स्टेज से दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, बिकॉज सेंट्रियोल्स को कहाँ पे आ जाना है, कंप्लीटली पोल्स पे। तो जाइगोटीन स्टेज में आके वो पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज जाइगोटीन स्टेज तक में वो यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, और उनको यहाँ तक पहुंचना है। ये तो हो गया सेंट्रियोल्स के बारे में। अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल इंटैक्ट। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, जाइगोटीन में द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे एक्चुअली स्टार्ट टेयरिंग। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब सपोज एक मैंने ब्लू से ड्रॉ किया था एंड ब्लैक से ड्रॉ किया था, सो आई एम ड्रॉइंग द होमोलोगस क्रोमोसोम्स हियर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स? क्या सेम होते बेटा? साइज, सिर्फ साइज सेम होती है, एनीथिंग एल्स और कोई डिफरेंस नहीं होता है? एक मिनट, लेट जिया कंप्लीट। हट जिया, और कोई डिफरेंस नहीं होता है बच्चे? हाँ तो सेम होता है, तो क्या चीज सेम होता है वही तो मैं पूछ रही हूँ। हाउ डू यू डिफाइन द होमोलोगस क्रोमोसोम? मुदित, ऑर्डर ऑफ जीन्स, यस एग्जैक्टली। जैसे सपोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स में बोलती हूँ, जैसे सपोज ये इसको मैं बाहर निकाल के एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड ये एक और है, सपोज दिस इज दी अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अभी होमोलोगस क्रोमोसोम इनको हम बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन? सपोज मैं कोई एक जीन की बात करती हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दी आई कलर जीन। ठीक है, आई कलर जीन है, तो सपोज आई कलर जीन को हम रिप्रेजेंटिंग इट एज बी। ठीक है, मतलब जो एंड आई कलर, हम दो आई कलर की बात कर रहे हैं, इट कैन बी इधर ब्लैक और इट कैन बी ब्राउन। ठीक है, तो सपोज कैपिटल बी को हम डिनोटिंग इट विद ब्लैक एंड स्मॉल बी को हम डिनोटिंग इट विद मतलब ब्राउन इज स्मॉल बी। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जीन क्या है, कौन सा जीन है, दैट इज दी आई कलर जीन। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे 12th क्लास में, तो होता क्या है कि हर जीन के जनरली देयर आर टू एलील्स। ठीक है, टू एलील्स मतलब कि सपोज कोई इंडिविजुअल है, तो जैसे मैंने बोला कैपिटल बी इज डिनोटिंग द ब्लैक कलर एंड स्मॉल बी इज एक्चुअली डोनेटिंग सॉरी डिनोटिंग द ब्राउन कलर। ठीक है, तो अगर मैं किसी इंडिविजुअल को कैपिटल बी लिखती हूँ, तो वो इंडिविजुअल के आई कलर क्या होगा, बोलो? इट विल बी ब्लैक। ठीक है, अगर मैं किसी इंडिविजुअल को स्मॉल बी बोलती हूँ, तो दैट इंडिविजुअल विल बी ब्राउन आइड इन कलर। होता क्या है, इसमें एक जीन हमेशा डोमिनेंट होता है और एक जीन रिसेसिव होता है। तो इसमें सपोज ब्लैक कलर को हमने डोमिनेंट कंसिडर किया है, सो द कैपिटल बी इज डोमिनेंट टू द स्मॉल बी। एलील सेम साइड होते हैं, रुको मेरे को भी एक्सप्लेन करने दो, बाद में पूछना। ठीक है, सो जो कैपिटल बी है इट इज एक्चुअली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल बी, मतलब ब्लैक कलर जो है आई का वो डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल बी। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ कोई एक इंडिविजुअल आ गया, कैपिटल बी स्मॉल बी वो बन गया, तो इसका आई कलर क्या होगा, इट विल बी ब्लैक। ब्लैक क्यों होगा, बिकॉज जस्ट नाउ मैंने बोला कि जो ब्लैक कलर है दैट इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन कलर। ठीक है, सो व्हाट वाज दिस एंटायर पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस? इसका मतलब ये है कि जो आई कलर का जीन है या कोई भी जीन है, उसके जनरली हर जीन के जनरली देयर आर टू एलील्स, एक्सेप्ट मल्टीपल एलील्स, वो एक सेपरेट एक्सेप्शन है। तो हर जीन के देयर आर टू एलील्स। ठीक है, तो इस केस में दो एलील्स कौन से हो गए, एक कैपिटल बी हो गया और एक स्मॉल बी हो गया। ठीक है, तो अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं एंड सपोज दिस इज द ये मदर था क्रोमोसोम है,
एंड सपोज दिस इज द फादर का क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर अगेन मैं सेम आई कलर के जीन की बात करती हूँ, तो सब मदर का आई कलर का जीन वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फादर के क्रोमोसोम में भी आई कलर का जीन एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, दे विल बी डिफरिंग इन देयर एलील्स जो उनके ऊपर प्रेजेंट है। सपोज जो मदर का क्रोमोसोम है उसके ऊपर कैपिटल बी प्रेजेंट है, एंड सपोज फादर के क्रोमोसोम पे देयर इज स्मॉल बी। बात समझ में आ रही है? तो जब ये, हाँ बोलो। क्या मालूम पड़ता है? बच्चे वो एक कंप्लीट स्टडी होती है, वो एक्चुअल में क्या होता है, जेनेटिक काउंसलिंग होती है। मतलब जैसे कई किसी बेबी को अगर मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एक एम्नियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है, उसमें जो जेनेटिक काउंसलर होता है बेबी का या जो भी पेरेंट कपल्स का, तो उसमें अगर कोई डिसऑर्डर होता है या कोई होता है तो वो उसको स्टडी किया जाता है, वो एक पेडिग्री के थ्रू कंप्लीटली स्टडी किया जाता है। मतलब अगर कोई सपोज कोई भी एक डिजीज प्रेजेंट है किसी कपल में, मतलब कोई मेल है उसके ग्रैंडफादर या उसके फादर में कोई डिजीज था, तो वो एक अजम्पशन लगाने के लिए, क्या वो जो उसका बेबी बॉर्न होगा, व्हाट आर द चांसेस, अगर वो लड़का होता है तो उसके अंदर में डिजीज होने के क्या चांसेस है, एंड अगर फीमेल होती है या डॉटर होती है तो उसमें डिजीज होने के क्या चांसेस है। वो सब एक कंप्लीटली जेनेटिक काउंसलिंग है, जेनेटिक्स के पोर्शन में आता है। इसमें क्या है कि जीन्स तो सी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसमें हम हमारे ह्यूमन जीन्स को कंप्लीटली सीक्वेंस कर चुके हैं। सो वी बेसिकली नो कि कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। So इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस, सो जो आई कलर का जीन दोनों में सेम जगह पे प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या होगा कि दोनों में एलील्स दे कैन डिफर। अगर मदर पे सपोज कैपिटल बी, मतलब मदर की आई सपोज ब्लैक इन कलर है, so mother will be carrying this capital B, and suppose the father has brown eyes, so father would be carrying this small b। बात समझ में आ रही है? तो now it completely depends, ये complete probability है कि जो offspring होगी, या whether it is a son or whether it is a daughter, it is a complete matter of probability कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें इन तीनों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी फॉर्म होता है, वेदर इट कैन बी कैपिटल बी। अगर कैपिटल बी आ गया तो इट हैज टू बी ब्लैक, विच शोज कि जो मदर है दैट इज एक्चुअली डोमिनेंट ओवर द फादर, बिकॉज ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन कलर। सो ये सब एक समझने का मतलब, ये सब एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि व्हाट टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोस क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर मतलब ऑब्वियसली साइज वगैरह और उनका भी सेम रहता है, बट इफ यू हैव टू एक्चुअली टेल अ डिफरेंस बिटवीन द टू, तो दोनों के ऊपर जीन्स का लोकेशन सेम होता है एंड दे कैन डिफर इन देयर एलील्स। अगर इस पे कैपिटल बी प्रेजेंट है तो इट हैज टू बी स्मॉल बी ओवर द अदर। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, जाइगोटीन स्टेज में द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे आर एक्चुअली दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड पेयरिंग। सो टू क्रिएट अ क्लैरिटी, मैंने I've taken, I've started with 4 chromosomes. So one pair को I've drawn it with blue color and the other pair I've drawn it with the black color. ठीक है? अच्छा, अब इसमें now we'll write down the characteristics. First point क्या होगा? The nuclear membrane ठीक है। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट